did you get into your startup? Startup was totally unplanned, Okay. unexpected. Mhm. मेरा एक ही गोल था कि एस्ट्रोनॉट बनना है, बाहर जाना है, रिसर्च करना है. I was completely into the technical aspect of it. While I was the chief technology officer at Space Nova, we were developing certain technologies for microgravity missions. So yeah. And आप किसको एडमायर सबसे ज्यादा करते हो? एडमायर, ऑनेस्टली ये क्वेश्चन मुझे हमेशा पूछा जाता है, बट मैं कभी इसको आंसर नहीं कर पाता. मेरा आंसर हमेशा से सेम रहा है कि माय फादर इज समवन जिनसे मैं हमेशा एडमायर हुआ, बिकॉज आज जहाँ पे भी मैं हूँ उसका 100% क्रेडिट उन्हें जाता है. गाइस, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पहले से ही, ये बंदा बार बार बैक बेंचर का बोल रहा है सब कुछ. मैं इससे मिला हूँ काफी टाइम से, इसको भी जान रहा हूँ. ये बहुत स्मार्ट है, ठीक है. स्पेस टूरिज्म, आई मीन लाइक क्या इससे मतलब मैं क्या समझू कि क्या कोई भी इंसान स्पेस में जाने के लिए आप Exactly. मतलब you can go to space from my company once my technology is developed. You just need to buy a ticket, like you buy it for a flight and चलो space हो जाते हैं. Amazing. Like क्या एवरी टिकट साइज क्या होगा? If I want to explore space, like क्या कितना चार्ज हो सकता है किसान को वहां तक जाने के लिए? देखो अभी के टाइम पे अगर if you look out at the ticket size 500 करोड़ वगैरह चालू है per ticket. Sorry? 400 करोड़ 500 करोड़ totally. मैं ना बचपन से मेरे को ना बड़ा एलियन का बड़ा जैसा आता था दिमाग में, क्या होता है नहीं होता यार, ये कार्टून बड़े एलियन के देखते रहते हैं, घर वाले डराते रहते हैं एलियन के नाम से और काफी मिथ्स चलते रहते हैं. तो डू यू बिलीव इन एलियंस? Hello all, welcome to my podcast channel Zelmo TV, and today we have very exciting guest with us. He is Asia's youngest astronaut trainee and the co-founder of Astroborn Aerospace. Let me introduce to my guest for the today's podcast. He is none other than Akshat Mohite. I welcome you, Akshat, to the podcast. Thank you so much. Thank you so much for making time for this podcast. Good. How are you doing? I'm good. How are you? Doing good. Like feeling so great, starting my new channel and having you like in this channel, like you're so knowledgeable and then you're from very different field. अभी मेरे को बचपन में हमेशा रहा है कि यार ये सब सुनते आए एरोस्पेस, ये सब का एस्ट्रोनॉट वाला चीज का, और देन मीटिंग इन पर्सन टू समवन लाइक इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग टू मी एज वेल. नहीं, इट्स अमेजिंग. मुझे भी अच्छा लगा कि यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू, गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट. सब लोग हमेशा प्लान करते रह जाते हैं, यार मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, बट द मोमेंट यू एग्जीक्यूट, दैट्स द बिगेस्ट स्टेप. So congrats on your channel. Thank you so much, Akshat. And I hope मेरी Zelmo family को भी अच्छा लगे after surely successful. they'll love it. Yeah, thank you so much. Yes. So Akshat, how is your life like being astronaut training like? Life's good. I mean, because everyone in India wants to become an astronaut. So when you come, you go train as an astronaut. G-force training होता है, hypoxia training होता है. Then you come back. Then everyone looks up to you. Okay, this is the person I want to be like. So it's more of like, अगर पूछा जाए, so it's more of a responsibility. Okay. Whatever you do, wherever you go, you need to always keep in mind कि every action that you take, there's going to be some reaction to it. So थोड़ा सा एक वहाँ पे restriction जैसा आ गया, you just can't do anything you want. थोड़ा समझ के act करना पड़ता है, but that's something I love. इसलिए मैं जाते रहता हूँ, टॉक्स देते रहता हूँ, या फिर स्कूल्स में जाके try to put forward some motivational lectures. Yeah, it's amazing so far. 5-6 years into the industry now. Cool. Yeah. And what all certification you have done? Certifications, I've got TADI, DGCA, FAA, FITS, SAMI. So these are all basically कुछ medical related certifications है, कुछ hypoxia clearances के certifications है, कुछ scuba diving के certifications है. So ऐसे बहुत सारे certifications लगते हैं so that you can firstly go there and train. उसके बाद तो और भी अलग होते ही जाते हैं. Right. अगर मुझे इससे क्वेश्चन पूछना था, like if someone is a physically disabled or like special person, तो special ability person. So I just want to understand, are they eligible for getting into this industry? Okay, अभी industry is huge. अभी in this industry, if you mean कि astronaut के perspective से only, if I want to be an astronaut, right? So क्या health, like मेरा condition या कितनी चीज में eligible हूँगा मैं? What all test I need to pass through it? Health is surely a major concern because when you are going up, तुम G-force ले रहे हो अपने body पे and you have to sustain that to reach there. But then अभी with the current technology developments जो Boeing कर रही है, SpaceX कर रही है, Astroborn Aerospace खुद कर रही है, we can look at a future wherein space would be accessible to all. Okay. And अभी के time पे space travel has become so easy. It is just very costly, but space travel has become easier. So yes, people with special abilities can also look forward to going into space and looking at Earth from the outside. So yeah.
एंड आप किसको एडमायर सबसे ज्यादा करते हो? एडमायर, ऑनेस्टली ये क्वेश्चन मुझे हमेशा पूछा जाता है बट मैं कभी इसको आंसर नहीं कर पाता, एंड मेरा आंसर हमेशा से सेम रहा है कि माय फादर इज समवन जिनसे मैं हमेशा एडमायर हुआ, बिकॉज आज जहां पे भी मैं हूँ उसका 100% क्रेडिट उन्हें जाता है. रीजन बीइंग माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम अ कार्निवल, जो मेले लगते हैं. ओके ओके. तो एक दिन ऐसे ही मेले में गए थे, पूरा फैमिली गया था. इट वाज बैक इन And how old were 2017. you that time? I was 16 years old. 16 years old. 15 16 Okay, ऐसा. okay. एंड वहां पे एक टेबल था, टेबल के ऊपर पोस्टर लगाया हुआ था कि डू यू वांट टू जॉइन नासा, इफ यस राइट योर नेम ऑन अ बुक. तो मैं डैड बोले कि जा भाई लिख के आना. मैं बोला नहीं, ऐसे कौन लिख के, यहाँ पे तो पेन को ही बांध के रखे कि कोई चोरी ना करके चले जाए, एंड यहाँ पे नाम लिखने से मैं नासा पहुंच जाऊंगा. बट देन ही स्टिल पुश्ड मी, एंड मैं गया वहां पे, नाम लिखा, एंड उसके बाद जनवरी 25 को या 24 को आई मध्य प्रदेश, उज्जैन के दर्शन करने गए थे. हाँ जी. तो वहां पे मुझे फोन आया कि आपने ऐसा ऐसा नाम लिखा था, तो हम लोग एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू जॉइन. ओके. मैं बोला श्योर, वेयर इज इट. तो बागबिल थाने में जो है, okay. तो वहां पे था. नेक्स्ट डे फ्लाइट पकड़ी, डैड और मैं आ गए, दोनों आके बैठ गए वहां पे सेमिनार में. सेमिनार में बैठे, देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आई वाज द एल्डेस्ट ऑफ देम, लेट्स से. उन्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे थे, एंड आई वाज दैट डमेस्ट किड जो पीछे बैठा था, जिसको कुछ नहीं आता है. okay. फिर वहां पे उन्होंने रिसर्च पेपर्स का बताया कि रिसर्च पेपर लिखो और नासा को कुरियर करो, यू माइट गेट सम अपॉर्चुनिटी वगैरह. एंड डैड वाज समवन हु इज लाइक अक्षर, ट्राई करना है तो कर सकते हैं. मैंने बोला लाइक ऑफ कोर्स ट्राई करते हैं. उस दिन बैठा, इट वाज 27th ऑफ जनवरी 2017. एंड उससे फिर हम लोग ने 10th ऑफ फरवरी के पहले लिखा, 10-12 दिन थे उतने में लिखा, कुरियर किया, एंड आई गॉट सिलेक्टेड. सो एकदम अनकन्वेंशनल पाथ, एकदम अननोन एरिया. क्या फीलिंग थी जब वो, यू नो, व्हेन यू रिसीव दैट, हाउ डिड यू रिसीव दैट? ईमेल आया? ईमेल. वो तो और भी फनी स्टोरी है एक्चुअली. Okay, so backbencher. Imagine a backbencher never scored more than 70% in the entire life. 11th के एग्जाम्स चालू है, डैड को लिटरली छुट्टी लेना पड़ा था ताकि वो पढ़ाई ले सके मेरी. So उन्होंने छुट्टी ली है, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, केमिस्ट्री का पेपर था, आई रिमेम्बर, एंड वो मेल आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया. We weren't just believing it कि भाई ऐसा कुछ एक्चुअल में भी हुआ है. All we said is छोड़, सो जाते हैं, उठ के वापस पढ़ाई चालू कर लेंगे, बिकॉज हमें तो कोई स्कैम कर रहा है. right. After a while, when we woke up, we saw a couple of messages, a couple of more mails, and we realized, oh shit, ये actually हुआ है. And उसके बाद मीडिया चालू हो गया, न्यूज चैनल्स आ रहे हैं, टीवी इंटरव्यूज हो रहे हैं, and we were all clueless कि okay चल क्या रहा है. मतलब ऐसा भी सोचा नहीं भाई. अचानक से जो बैक बेंचर है वो बन गया एकदम नर्ड, स्टूडियस, कोई नासा रिसर्च पेपर लिखने वाला बंदा. So, amazing feeling. I feel कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, इसलिए मैं वही विजन के साथ जाता हूँ कि यार करो, रिसर्च पेपर्स लिखो. इसलिए I've been teaching students कि रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं and all of these parts. Good. And how did you celebrate that day? Like what special you have done that day? Like जो usual day से other था, मतलब like कैसे? स्पेशल बोलो तो वी वेंट आउट फॉर डिनर, बिकॉज हम लोग पहले तो वो सेंस ऑफ बिलीफ लाने में ही हमारा टाइम गया कि ऐसा कुछ एक्चुअल में हुआ है. एंड माय ग्रैंडमदर वाज आल्सो इन डिसबिलीफ कि यार ये कैसे हो गया. मतलब शी यूज्ड टू थिंक मैं रात भर जो जागता था, मैं लैपटॉप पे गेम खेल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, ऐसा उन्हें लगता था. In one interview she also said, वो कहीं पे मिलेगा क्लिप, maybe you can attach it. Guys, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पहले से, ये बंदा बार बार बैक बेंचर का बोल रहा है सब कुछ. मैं इससे मिला हूँ काफी टाइम से, इसको भी जान रहा हूँ, ये बहुत स्मार्ट है, ठीक है. और आई नो बैक बेंचर तो वैसे भी स्मार्ट होते हैं, बट इसके वर्ड्स में मत जाना. नहीं थैंक यू. तो वो क्लिप मिलेगा, दादी बोलेगी कि उसमें उनका एक क्लिप है वेयर शी सेज कि मुझे पता नहीं रात भर क्या करते रहता था और एक दिन ऐसे ही सिलेक्ट हो गया. तब समझा कि वो कुछ काम का कर रहा था. So it was amazing. Unexpected. Really a proud moment for you and for your family, obviously. And let's come to your like अभी startup वाला part. Like how did you get into your startup? Startup was totally unplanned, unexpected. मेरा एक ही गोल था कि एस्ट्रोनॉट बनना है, बाहर जाना है, रिसर्च करना है. I was completely into the technical aspect of it. While I was the chief technology officer at Space Nova, we were developing certain technologies for microgravity missions. And फिर उसी ड्यूरेशन में मैं दुबई गया था. दुबई में जाके देखा कि यार सब लोग यही कर रहे हैं, सब लोग रॉकेट्स बना रहे हैं, सैटेलाइट्स बना रहे हैं, माइक्रोग्रेविटी के लिए साउंडिंग रॉकेट बना रहे हैं. एंड आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड कि यार मैं क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ सोसाइटी में.
So if I got an opportunity जो सबको नहीं मिलती है, then it's my responsibility to bring some value addition, I feel. So उसके बाद I quit from that position, and then we started Astroborn with a single vision कि we'll build Asia's first astronaut training facility. Okay. So that इसरो के astronauts को बाहर रशिया नासा जाके ट्रेन ना करना पड़े. फिर थोड़ा थोड़ा बिजनेस समझने लगा तो समझा कि इट्स नॉट दैट स्केलेबल, तो हम लोग ने वहां से शिफ्ट करके स्पेस टूरिज्म पे आ गए. स्पेस टूरिज्म के साथ हम लोग कार्गो रीसप्लाई पे आ गए, एंड दैट इज व्हाट टुडे एस्ट्रोबॉर्न इज. सो ऐसा स्टार्ट था हमारा. स्पेस टूरिज्म, आई मीन लाइक क्या इससे मतलब मैं क्या समझू कि क्या कोई भी इंसान स्पेस में जाने के लिए आप Exactly. मतलब you can go to space from my company once my technology is developed. You just need to buy a ticket, like you buy it for a flight, and चलो space में जाते हैं. Amazing. So where do you stand now with your company? अभी we are into the core technology developments. हम लोग के propulsion engine set है. हम लोग अभी thermal protection TPS जो होता है, thermal protection system, उस पे काम कर रहे हैं. We have been working corely on material science. क्योंकि जो मेजर फैक्टर है स्पेस टूरिज्म में, दैट इज ब्रिंगिंग द कॉस्ट डाउन. अगर कॉस्ट नीचे लाना है तो दो वेज है. एक तो रॉकेट का लॉन्च पर कॉस्ट पर लॉन्च जो है वो नीचे आना चाहिए, एंड दूसरा क्रू मॉड्यूल का रिफर्बिशमेंट कॉस्ट नीचे आना चाहिए. सो रॉकेट्स वी डोंट डेवलप, इसलिए हम लोग ने हमारे जो दोस्त की कंपनी है, वोंट बी एबल टू रिवील द नेम राइट नाउ, उनके साथ पार्टनर किया है अलॉन्ग विद इसरो एंड अदर जो प्रोसेस में है अभी. एंड जो हमारा क्रू मॉड्यूल है उस पे भी रिसर्च डीपली ऑन द मटेरियल्स, सो दैट हम लोग उसको वापस रिफर्बिश कर पाए एंड द कॉस्ट कैन बी डाउन. ओके. अच्छा, मैं अभी भी वही स्पेस टूरिज्म में काफी एक्साइटेड हूँ और वहीं अटका हुआ हूँ टू बी ऑनेस्ट. तो मुझे समझना है कि अगर क्या एवरेज टिकट साइज क्या होगा इफ आई वांट टू एक्सप्लोर स्पेस, लाइक क्या कितना चार्ज हो सकता है किसान को वहां तक जाने के लिए? देखो अभी के टाइम पे अगर इफ यू लुक आउट एट द टिकट साइज 500 करोड़ वगैरह चालू है पर टिकट. सॉरी, 400 करोड़ 500 करोड़, टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ. सॉरी गाइस, मैं तो नहीं जा पा रहा हूं. आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज डू कांटेक्ट. नहीं वो हमारा उतना नहीं होगा. वी आर मोस्टली एट $50 million का रेंज हमारा रहेगा, एंड वी आर स्टिल ट्राइंग हार्ड कि वो 50 से 20 पे कैसे लाए. बिकॉज हमारा एक ही गोल है, इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल स्पेस टूरिज्म एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन. मतलब अगर हम देखें, पहले बोट आई, फिर फ्लाइट्स आए, आज फ्लाइट्स है, उसको यहाँ से अमेरिका जाना है 24 घंटा लग रहा है. राइट. आगे जाके स्पेस ट्रैवल एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन इज द फ्यूचर जो आएगा, एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू. इसका अफोर्डेबिलिटी इज समथिंग. अगर हमारे यंगस्टर ऐसा कुछ सोचेंगे तो वो टाइम दूर नहीं है. जो ये विजन लेके चल रहे हैं बहुत जल्दी हम वो अकम्प्लिश करने वाले हैं. सो अच्छा, तभी ऐसा थोड़ा फन पार्ट करते हैं. मैं ना बचपन से मेरे को ना बड़ा एलियन का बड़ा वैसा आता था दिमाग में, क्या होता है नहीं होता यार, ये कार्टून बड़े एलियन के देखते रहते हैं, घर वाले डराते रहते हैं एलियन के नाम से, और काफी मिथ्स चलते रहते हैं. तो डू यू बिलीव इन एलियंस, एंड व्हाट इज योर? I do believe in aliens, and सिर्फ not only I do believe in aliens. अगर ये Voyager मिशन का आपने सुना होगा, सो Voyager एक मिशन था जो नासा ने सेंड किया था, जिसके अंदर एक गोल्डन रिकॉर्ड करके सीडी था. इन दैट सीडी वी एडेड एवरीथिंग, म्यूजिक, photos, map that can be traced back to Earth. There was a song in it called Chakrulo. Okay. Yeah, I don't remember Austria का song है या कहीं का song है, I don't remember the country exactly. So वो song है उस कैसेट में, so that whenever any alien finds it, they'll understand कि okay ये culture है Earth पे, ये songs ऐसे होते हैं, जगह ऐसे है, then the map that's tracing it, ये Earth तक कैसे पहुंचे. So एक concept है good aliens. Okay. So we believe कि जो भी alien होगा वो good ही होगा. Okay. So that good alien can come to us and we can understand about it. So ये है, I do believe in alien. रुके है कि कभी दिख जाए. Okay, cool. So guys, आप अभी ना इस मिथ को थोड़ा सा रियलिटी में समझ सकते हो कि हाँ एलियंस होते हैं. So अभी ना अच्छा बड़ा hot topic है that Sunita Williams, right? Like she just came back and like we were so happy, like she landed safely, right? So कितनी tough life होती है अक्षत? Like आपने थोड़ा तो experience किया होगा, like उस चीज को virtually या इतना studies किया होगा, deep analysis किया होगा, कितना tough होता है वहाँ पे survive करना? Honestly, difficulties सिर्फ बढ़ते जाते हैं, because vision loss हो जाए, mass loss हो जाए, bone का density कम होता है because of radiations, stability जो होता है वो पूरा disrupt हो जाता है. So when you're back on Earth, you can't even stand. So once you land back on Earth, पूरे space mission के बाद, they take you on a stretcher.
बिकॉज तुम खड़े ही नहीं हो ये मैंने सकते। सुना था कि जब स्पेस से कोई काफी टाइम से आता है, मतलब काफी टाइम बाद आता है, तो उसको ना वैसी इन्वायरमेंट थोड़ा टाइम तक और रखा जाता है, वो धीरे 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 करके it नॉर्मल rebuilds. एनवायरनमेंट में Exactly, या it rebuilds धीरे धीरे, क्योंकि पूरा मास बोन डेंसिटी जा चुका होता है ना। Okay. The body needs to rebuild, the brain needs to understand कि okay, अभी there is gravity around me, तो थोड़ा stability develop होता है। The next problem is the resources. हाँ राइट। तो luckily इस बार जब सुनीता विलियम्स when she went up, there was enough space to accommodate with enough resources up there in International Space Station with the existing crew. Okay. इसलिए कोई extreme problems नहीं आए, but in cases of limited resources वगैरह you need to then send as a cargo resupply missions होते हैं वगैरह, so that's how it goes. एंड कितने लोग की टीम जाती है? अच्छा तभी जो गए थे सुनीता, मैं अभी तो तो उन्हीं दो को, लोग लाइक गए शी इज थे। वेरी पॉपुलर सो आई नो हर नहीं, ओनली। Sunita Williams and her partner Butch, those Butch, were two okay. who were sent up, and वो दोनों भी अटके हुए थे। बीच में तो बहुत सारे मीम्स थे कि इंडिया में everyone was praising and welcome back Sunita Williams वगैरह, and no one took a look at Butch. The next person, yeah, Exactly, yeah, her no. partner, he was like मैं भी जाता। Crazy So, था। Archit, what all equipments do they carry? Like, क्योंकि आपको नहीं पता, आप 4 महीने 6 महीने भी स्ट्रेच हो जाए, अभी हुआ ये केस, तो क्या कितने रिसोर्स, कैसे वो लिस्ट डाउन करते हैं कि हमको क्या क्या हमेशा रिक्वायर्ड? मिशन प्रोफाइल डिसाइड होता है। अच्छा मिशन अब प्रोफाइल, मिशन प्रोफाइल के हिसाब से इट कुड बी एन इंजीनियरिंग मिशन प्रोफाइल, इट कुड बी अ रिसर्च मिशन, किस मिशन के लिए जा रहे हो, ऑब्जर्वेशन मिशन है, उस हिसाब से इक्विपमेंट्स डिसाइड होते हैं, उस हिसाब से रिसोर्सेज डिसाइड होते हैं। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्रीसेट रिसोर्सेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो हमेशा रीसप्लाई के थ्रू हम लोग रिप्लेनिश करते हैं। ओके। सो इसलिए दैट इज लाइक अ होम आउट इन स्पेस, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता किसी को। एंड जब वंस लाइक कोई इंसान अगर स्पेस पे जाता है, तो क्या 24 घंटे उसको मॉनिटर, कौन सी वो टीम होती है उसको मॉनिटर करती है, उनकी हेल्थ कंडीशंस हो गई या स्पेस कंडीशन या इंजीनियरिंग कंडीशन को कौन उसको मॉनिटर करता है? जस्ट 24 लाइव ऑपरेशन आई बिलीव, राइट? यस। अभी ग्राउंड स्टेशन जो होता है, जो नासा ने एस्टैब्लिश किया है, सो वहाँ पे ऑल ऑफ दीज मेट्रिक्स आर मॉनिटर्ड 24/7। उनके एक्सरसाइज से लेके उनका ब्लड प्रेशर हो जाए, ऑक्सीजन लेवल्स हो जाए, उन्हें चेक करने बोलते हैं फ्रॉम स्पेस, एंड वो उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है, गाइड करते हैं, राइट? सो देयर इज अ होल लॉट, मतलब जो जितना ऊपर चल रहा है उससे 1000 गुना ज्यादा नीचे प्रोसेस चल रहा है टू एक्चुअली सपोर्ट दैट ऑपरेशन अप देयर, एंड दैट्स अ ह्यूज प्रोसेस। राइट। अभी तो काफी हम लोग ने सीरियस डिस्कशन काफी हो गया। अभी अक्षत की पर्सनल लाइफ का थोड़ा जानते हैं कि लाइक व्हाट यूजुअली ही डू, लाइक व्हाट आर हिज हॉबीज? आपकी क्या हॉबीज है अक्षत? आप बताओगे लोगों को क्या करते हो यूजुअल डेज में? यूजुअल डेज तो यूजुअली वर्क में ही चला जाता है। आई डू अंडरस्टैंड। बट देन इन द इवनिंग्स आई यूजुअली ट्राई टू गो प्ले स्नूकर। Snooker, okay. I love snooker. Really stress releasing. Exactly. So snooker is my favorite sport. Okay. उसके अलावा I do try out lawn tennis. Lawn tennis, okay. Yup, and badminton. ये 3 sports है जो I prefer. उसके अलावा I usually try to learn नए इंstruments. Okay. So अभी recently I was trying guitar out. Guitar, okay. हाँ, अभी आज ही मैं सोच रहा था कि पियानो सीख लेते हैं। तो गिटार पूरा हुआ पहले? नहीं। वो इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग। अब चालू हो गया तो खत्म हो जाएगा कभी। ये मैं गिटार का, मेरे को ना 9th में जब मेरा नया क्रश बना हुआ था ना, तब मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था, गिटार करूंगा, थोड़ा हाइलाइटेड रहूंगा। और इट वाज अ मिथ कि अगर कोई गर्लफ्रेंड चाहिए तो गिटार चाहिए। नो, आई थिंक इट्स रियलिटी। I mean, I have seen like a lot of people, like at least they're not single. Like those who know I mean, how to play guitar, like they're not single. It's known कि women are actually auditory characters and men are visual characters. So इसलिए वो हो सकता है science. Could be भाई। हाँ ये है। अक्षत, अभी ना आपने देखा होगा अभी स्टार्टअप की लहर आ चुकी है, स्टार्टअप्स की, लाइक हर दूसरा इंसान चाहता है खुद का कुछ करे, वो 9 to 5 जॉब में नहीं फंसना चाहता। तो कितना डिफिकल्ट हो, आपको ऑलरेडी स्टार्टअप है और आप एक लेवल तक आ चुके हो, काफी स्ट्रगल करके हो, काफी कितना टफ होता है एक स्टार्टअप करना? मुझे क्या लगता है कि स्टार्टअप एक फैक्टर आता है ऑब्सेशन। ओके। अगर ऑब्सेशन है तो डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन अगर ऑब्सेशन नहीं है तो यू आर गोइंग टू फेस अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम। ऑब्सेशन इन द सेंस, ऑब्सेशन मतलब कि देयर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स इस सेगमेंट में। कोई बोलते हैं कि अगर तुम टेक्निकल नहीं हो या तुम्हारे पास टेक्निकल फाउंडर नहीं है तो तुम स्टार्टअप नहीं चालू कर सकते। ओके। बेसिक एग्जांपल मीशो जो है, उन्होंने चालू टेक्नोलॉजी से किया ही नहीं था। गूगल फॉर्म्स बनाए थे, गूगल शीट बनाए थे, उससे बिजनेस चालू किया। बिजनेस एक सर्टेन लेवल के आने के बाद टेक्नोलॉजी इनकलकेट किया था। सो उनमें क्या था, ऑब्सेशन था, दिन रात काम करना, परसिस्टेंसी रहना, परसिवियरेंस रहना, एंड जस्ट कीपिंग ऑन वर्किंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर सारे प्रॉब्लम्स अपने आप हट जाते हैं एंड चीज डेवलप हो जाती है। एक और चीज की
एक बिलीफ होता है कि आइडिया कभी गलत नहीं होता है, खराब नहीं होता, एग्जीक्यूशन गलत होता Okay. है या खराब होता है. राइट सो ऑल यू नीड टू नो कि जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट करता है एंड इट इज रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस, तो यू कैन मेक इट हैपन. हाँ अच्छा ये बात सही बोली कि एक तो ऑब्सेशन होता है और लाइक आप पैशनेट हो किसी चीज को लेके और आपने काफी उसके रिसर्च करके बैठी हुई है और आप उसके सोचते रहे तो जरूर आप उस चीज को अकम्प्लिश कर सकते हो. बट अच्छा तो सबसे बड़ा जो बैरियर होता है लाइक लोग कनेक्ट कर पाएंगे से कैपिटल. आप कुछ भी स्टार्ट करते हो घर से बाहर निकलते हो पैसे की जरूरत सबसे पहले होती है. तो कैसे आपने ये मतलब पैसे को क्योंकि आपका तो बड़ा मास स्टार्टअप है और उसमें तो काफी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और आज कोई भी स्टार्टअप करो कुछ भी करो पैसा रिक्वायर्ड होता है. तो एक लोअर लेवल से इंसान कैसे उस लेवल पे सोचे क्योंकि आइडियाज काफी लोग के मन में चलते हैं, काफी लोग बहुत कुछ सोचते हैं और काफी अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं बट आइडियाज की तो वैल्यू होती है जब तक कि वो एग्जीक्यूशन में दिखता नहीं है. राइट. तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो कैपिटल लगती है उसको कैप्चर करना कितना टफ. ऑनेस्टली इसे हम बोलते हैं चालू करने के लिए जो कैपिटल उसकी Right. बात कर रहे हैं हम लोग. सो उसके लिए देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रांट्स जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं, इंक्यूबेटर्स हो गए, उनके पास Okay. ग्रांट्स मिलते हैं. Okay. इफ यू हैव अ सॉलिड आइडिया, उस पे आपने काम किया है, उसका आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन गो अप्रोच दीज इंक्यूबेटर्स. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम होता है Okay. जहाँ पे ऑलमोस्ट 40-50 लाख तक के ग्रांट्स मिल जाते हैं. Okay. टेक दैट, Okay. डेवलप योर टेक्नोलॉजी. इन्वेस्टर्स है, एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाओ, पिचिंग करो. एक प्रोसेस है बट आई वोंट से कि इट्स वेरी डिफिकल्ट. ओके इट जस्ट रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन. ओके ओके. सो ह्यूज टीम की जरूरत नहीं है, आप एक या दो या तीन लोग के साथ भी आराम एटलीस्ट से. इनिशिएट कर सकते हो. बिल्कुल राइट. बिल्कुल. मेरा फर्स्ट जो ग्रांट था वो IIM अहमदाबाद से था, CICO का. वी वर जस्ट अ टीम ऑफ 2, मेरे को-फाउंडर और मैं. ओके हम लोग ने मिलके एक बेसिक प्रोटोटाइप या फिर टेक्नोलॉजी वैलिडेशन शीट बनाया था एंड वो लेके हम गए थे कि सर हमारे पास ये आइडिया है, ऐसे हम रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं स्पेस सेक्टर को एंड प्लीज सपोर्ट अस. एंड दे प्रोवाइडेड अस विद आवर द फर्स्ट ग्रांट. ओके. सो ऐसे बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है. Guys, stay motivated. आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है. He is very young, sometimes I feel so jealous. Okay, जो काफी यंग होते हैं मुझे लगता है 2-3 साल मुझे और मिल जाते ना तो यार थोड़ा कुछ तो जो भी ये देख रहा है मैं तो सबको यही बोलूंगा कि प्लीज स्टे मोटिवेटेड. जहां पे भी हो जैसे भी वहां से स्टार्ट कर सकते हो. सो अक्षत, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. ओके, एंड आई होप काफी लोग को काफी कुछ आइडिया मिला होगा इस इंडस्ट्री के बारे में भी, थोड़ा मोटिवेशन भी मिला होगा. राइट. सो स्टे कनेक्टेड for the next podcast video.